एंड रूट के बाद वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्चुअली द स्टेम. ठीक है, सो स्टेम वी ऑलरेडी नो व्हाट इज स्टेम एक्चुअली. सो स्टेम इज that upright slender part which we can see above the ground obviously. So it is that ascending part of the axis which bears branches, various leaves, flowers and various fruits. Okay, so these are the general specific characteristics of a stem. Now और अच्छा, और जो स्टेम होती है when it is actually present in the young stage में क्या होता है? The young stage में the stem is generally in young stage the stem is generally green to protect, और एक थोड़ा बहुत photosynthesis का भी function perform करती है and to protect the younger parts, जो young parts होते हैं. And जब mature हो जाती है stem तो it actually becomes brown in color and it also becomes woody. ठीक है, so this is the transition which a stem actually goes through a young stage to a mature stage. ठीक है, also मैंने कल बोला था कि stem possesses two things which are the nodes and internodes. So how do you characterize what is actually a node and what is an internode? Node is basically that region where the leaves are born. जहां से leaves arise करेंगी, that region is actually the nodes. And internodes वो region है, the distance between two nodes, that is actually the internodes. ठीक है, for example this is the common diagram which we have been studying since ages, बहुत छोटी classes से. So the part which is present above the ground, this is clearly the stem region, and the part below the ground, that is the root region. ठीक है, root system. So there's a flower, there's a fruit. This is the stem part, and these are the leaves. So what did I say? जो जहाँ जिस region में leaves arise करेंगे, पहले तो these are the axillary buds. ठीक है, दो types के buds होते हैं. One is the axillary bud and the other is terminal bud. अगर terminal bud मतलब वो किसी चीज के टिप पे present होगा, and axillary bud मतलब किसी दो चीजों के बीच में वो bud present है. So here it is the stem and here it is the leaf. So axillary bud, so this is the axillary bud and यहाँ से the leaf is actually arising. ठीक है, so यहाँ पे मैंने लिखा है कि node is the region जहाँ पे the leaves will be present. So this is a node, so this is a node and this is another node. ठीक है, तो जहाँ पे भी obviously the buds have to be present. So यहाँ पे these are the axillary buds and these are the leaves. So the region between the two nodes, it actually constitutes an internode. ठीक है, so this is the identification, or this is the justification for the definition of the nodes and the internodes. So node क्या है? Node is any region जहाँ पे leaves they will be present, leaves या कोई भी fruit या anything, जो भी stem part है उसके ऊपर कोई भी part जहाँ से arise करता है, that is particular a node. So, and the distance between the two nodes, that region is called as the internode. ठीक है, so this is the basic description, you already know it, you have been studying it since smaller classes. अच्छा, now we'll talk about the various kinds of stem modifications. ठीक है, we'll talk about various kinds of stem modifications. Stem modifications में जैसे कल root modifications किया था, वैसे we'll talk about various stem modifications. First is tendril. Tendril मतलब tendril, these are actually thread like structures which can coil around the support and it helps the plant in climbing. ठीक है, for example जैसे cucumber होता है, grape vines होती हैं, और the watermelon, इन सब में क्या होता है? सपोज दिस इज द स्टेम रीजन, ठीक है, एंड दिस इज द लीफ पार्ट. ठीक है, दिस इज द ब्रांच वेयर द लीव्स आर प्रेजेंट, and from the axil of this branch there this particular region is arising which is, यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? जैसे यहाँ पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है, exactly यहाँ पे there should have been an axillary bud, but this axillary bud actually got modified into tendril as this bud is present on the stem region. So this is again obviously a stem modification. So this particular axillary bud got modified into a tendril. ठीक है, and what is the purpose of this modification? To ease the plant in the climbing purpose. ठीक है, examples I've already told you: cucumber, grapevine, watermelon, etc. ठीक है, now moving on to the thorns. Thorns में क्या होता है? Thorns obviously आप सभी को पता है. Thorns, they are stiff sharp structures which lose their growing point
and they become hard. ठीक है. For example, citrus, bougainvillea, pomegranate. अच्छा, what is the purpose of these thorns? Obviously, protect the plant from the predators or from the grazing animals. ठीक है. This is a defensive modification which has been adapted by the plant to protect itself. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे you're studying thorns. अभी आगे जाके you'll study one more word which is actually spine. ठीक है. दोनों के दोनों दीज आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, बट दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अभी जब हम लीफ करेंगे तब हम एक वर्ड को स्टडी करेंगे विच इज स्पाइन. अभी स्टेम के साथ में वी आर स्टडिंग थॉर्न. सो बेसिकली दोनों का फंक्शन इट एक्चुअली रिमेन सेम फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन. बट थॉर्न्स एंड स्पाइन में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? जो थॉर्न्स होते हैं दे आर एक्चुअली द स्टेम मॉडिफिकेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग इट अंडर द स्टेम मॉडिफिकेशन कैटेगरी. एंड जो स्पाइन्स होते हैं दे आर एक्चुअली द मॉडिफाइड लीव्स. ठीक है. जब लीफ करेंगे तो स्पाइन्स भी आएगा. सो व्हेन यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो जो थॉर्न्स होते हैं दे आर एक्चुअली द स्टेम मॉडिफिकेशंस एंड जो स्पाइन्स होते हैं दे आर एक्चुअली द लीफ मॉडिफिकेशंस. ओके. सो अब थॉर्न्स किसमें प्रेजेंट होंगे? लाइक द सिट्रस ट्रीज, बोगनविलिया, पोमीग्रेनेट. ठीक है. नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज एक्चुअली फाइलोक्लैड्स, फाइलोक्लेड्स और फाइलोक्लैड्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. अब ये क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, कैक्टस सभी ने देखा है, एवरीवन हैज सीन कैक्टस. कैक्टस में क्या होता है? जैसे कल मुदत वाज आस्किंग मी द क्वेश्चन हाउ डू द डेजर्ट प्लांट्स एक्चुअली सर्वाइव. ठीक है. हम सभी को पता है जो लीव्स होती हैं प्लांट के अंदर, लीव्स आर द मेजर regions which perform the function of photosynthesis. ठीक है. Photosynthesis means the food making process for the plants. So majorly leaves are responsible for the function of photosynthesis. And होता क्या है? दिन के टाइम पे जो ट्रांसपिरेशन लॉस होता है, मतलब लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपिरेशन. सो जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होता है प्लांट्स में, दैट इज ऑल्सो मेजरली टेकिंग प्लेस थ्रू द लीव्स. अब जो प्लांट्स डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, लाइक जो भी जीरोफाइट्स होते हैं, लाइक द कैक्टस एंड ओपनशिया, तो इनके पास तो ऑलरेडी इतने वाटर स्कार्स कंडीशंस में प्रेजेंट है, इतनी लेस वाटर प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वाटर इज देयर. अगर if they have the leaves and if they keep on losing water, very जो भी little amount of water उनके पास present है, अगर उसको भी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज करने लगे तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट्स. ठीक है. सो ये जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं या जो ड्राई एरियाज में प्लांट्स मिलते हैं, दे हैव कम अप विद अ मॉडिफिकेशन. ठीक है. व्हाट इज दैट अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन? उन्होंने क्या किया कि अपनी स्टेम्स को दे मेड इट ग्रीन, लीव्स को दे कंप्लीटली रिमूव. इनके अंदर लीव्स एज सच कुछ लीव्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है. दे एक्चुअली हैव मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू अ ग्रीन स्ट्रक्चर. ठीक है. मतलब ग्रीन स्टेम मतलब the stem in these plants is actually performing the function of photosynthesis. ठीक है. ऐसा करने के पीछे का what is the benefit? जब इन्होंने स्टेम को अपना ग्रीन किया, एक्चुअली द थिंग इज लीव्स के थ्रू वाटर का लॉस इज मोर, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए देयर लीव्स, बट इफ दैट फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द स्टेम, तो द ट्रांसपिरेशन लॉस, मतलब ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होगा दैट विल बी वेरी लेस और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. प्लस making the stems green can help these plants to store water. ठीक है. So this is an plus point for both all these plants present in the dry areas. So what are phylloclads? If we have to define them, they are the flattened or cylindrical green stem. Green stem is very important part because इसमें जो leaves हैं, leaves are not present. Rather, the function of photosynthesis has been taken over by the stem. ठीक है. Because they have turned green. Now which have, so the green stem which have actually taken over the process of photosynthesis, and these phylloclads, they help the plants to grow in the dry habitats because transpiration is little from the stem. Just the point which I told you now कि stem के through जो water loss होता है transpiration का, that is very less. ठीक है. So this is the reason for doing all of this, for developing this phylloclad or performing this adaptation. एग्जाम्पल आप कैक्टस डाल सकते हैं, यू कैन पुट दी ओपनशिया. सपोज दिस इज हाउ दी ओपनशिया एक्चुअली लुक लाइक. तो उनके ऊपर ऐसे क्या होता है, दीज आर द वेरी फाइन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स. अगेन दीज आर हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स
एंड इनके अंदर कैक्टस में कभी भी आप कोई लीव्स नहीं देखोगे. एवरीवन हैज सीन द कैक्टस. तो उसके वो क्या जो भी हम रीजन देखते हैं व्हाट इज दैट एक्चुअली वी आर एक्चुअली सीइंग द फाइलोक्लाड्स इन देयर. ठीक है. Reason, simple सा reason है because these plants, these type of plants, they are present, they are adapted to live in the dry areas and they have to minimize their water loss because of the transpiration. ठीक है. इसके बाद जो फाइलोक्लाड से ही रिजेंबलिंग एक टर्म आती है विच इज द क्लैडोड्स. ठीक है. क्लैडोड्स मतलब कि again these are the green stems of limited growth which have taken the function of photosynthesis over leaves. Now ये दोनों के दोनों similar हैं. इसमें भी जो है वो स्टेम हैज टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ लीव्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इसमें भी सेम चीज है. स्टेम हैज टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि जो क्लैडोड्स होते हैं इनकी जो लेंथ होती है देर ओनली अबाउट 1 इंटरनोड लॉन्ग. सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होंगे. मतलब 2 नोड्स जो होंगी उतना उनकी लेंथ होगी. अब इस दोनों में और सेकंड डिफरेंस क्या होगा. जो फाइलोक्लाड्स होते हैं इनके अंदर देर आर मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट. इसके अंदर बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. सो बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं. सो देयरफॉर इट विल बी हैविंग अनलिमिटेड ग्रोथ. बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखा है जो क्लैडोड्स होते हैं दे आर ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. लिमिटेड ग्रोथ प्लस सेकंड पॉइंट आई रिटन दे आर ओनली 1 internode long. So that is their length. For example, suppose this is the stem of any plant and this is the branch. ठीक है. अब ये जो ब्लैक में मैंने ड्रॉ किया सपोज दीज आर द स्केली लीव्स. ऑब्वियसली जो ड्राई एरियाज में प्रेजेंट हैं या जो ऑब्वियसली स्टेम फोटोसिंथेसिस का फंक्शन बात करिए तो ड्राई एरियाज में ये प्लांट्स प्रेजेंट होंगे. बट इनके अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है. जैसे अब ये जो स्केली लीव्स हैं स्केल के फॉर्म में लीव्स प्रेजेंट होंगी एंड इनके ऊपर अभी जो लीफ अराइज करे मैंने अभी लिखा था वो नोड से अराइज करेगी. सो दिस विल ऑब्वियसली बी अ नोड. अब इस पे से ग्रीन ऐसा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर अराइजिंग. सो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं दे आर एक्चुअली द क्लैडोड्स. ठीक है. सो दिस इज द वन स्केली लीफ एंड दिस इज द अनदर स्केली लीफ. ठीक है. तो इसके ऊपर भी सेम चीज होगी. यहाँ पे भी दीज ग्रीन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर अराइजिंग टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. एंड सो दिस इज हाउ this cladode is actually 1 internode long. So this is one node and this is one node. So their length is only 1 internode. Again फिर से कोई एक scaly leaf का region आएगा. So this will again become a node and this will be a node. And so ये दोनों क्या होंगे cladodes and their length will be only 1 internode. But इसके अंदर ऐसा कोई केस नहीं होता. There can be many nodes, there can be many internodes. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेनी नोड्स एंड इंटरनोड्स जो फाइलोक्लाड्स की लेंथ होगी या जो ग्रोथ होगी इट विल बी अनलिमिटेड. बट क्लैडोड्स की जो ग्रोथ होगी दैट विल बी लिमिटेड एंड दे विल बी ओनली 1 इंटरनोड लॉन्ग. ठीक है. अच्छा इसमें एग्जाम्पल आप करेंगे एस्पैरेगस. फाइलोक्लाड्स याद रखो डेजर्ट एरियाज में प्रेजेंट होंगे क्लियरली. एग्जाम्पल इज ओपनशिया और द कैक्टस. Cladodes will be asparagus and there उनमें difference क्या होगा. There will be 1 internode long. Is it clear? Next we'll move on to the next modifications. Actual में क्या है आपके NCERT में उन्होंने NCERT में mention तो सब कुछ किया but they haven't mentioned these names. Thorns, phyloclads, cladodes ये सब कुछ mention नहीं किया but उसका description उन्होंने सब mention किया है. तो बट दे हैव एक्चुअली नॉट टेकन द नेम्स. सो आपको ये सब करना पड़ेगा. बेसिकली आई एम डूइंग इट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. तो जो जो मेजरली आपकी बुक में दैट विल गेट कवर्ड अप. ठीक है. सो इज इट क्लियर. कैन आई रब द बोर्ड नाउ. So next modification is actually fifth, runner. Firstly, I'll write down the definition and then I'll explain. Runners, they are actually special green above. They are special horizontal
structures which develop at the bases of erect shoots called crowns. अब देखो इसमें पहले एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. एग्जाम्पल इज एक्चुअली साइनोडॉन, commonly known as doob grass, and the other example is oxalis. सभी ने लॉन में धूप ग्रास देखी है. लाइक जो एक तो ग्रास होती है जो नॉर्मल ग्रास होती है, एकदम इतनी छोटी छोटी ग्रास होती है, एंड एक ग्रास होती है जो कंपैरेटिवली उनके जो लैमिना या लीफ ब्लेड्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, सो वो जो उसको जो ये बड़ी वाली ग्रास होती है उसको वी कॉल इट एज द धूप ग्रास, एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पसेस. अब इसमें क्या होता है, रनर एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज दिस इज द ग्राउंड एरिया, एंड ग्राउंड एरिया के ऊपर यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्टेम. स्टेम पे ये सब लीव्स वगैरह और ये सब प्रेजेंट है. अब इसमें क्या होता है कि रनर है. रनर, अब स्टेम का एक्चुअल में क्या होता है, एक पार्ट इसकी स्टेम से एक पार्ट इमर्ज होता है, वो इसके ग्राउंड के पैरेलल रन करने लगता है. ठीक है, ग्राउंड के ऐसे पैरेलल रन करने लगता है, और ये स्टेम का ही पार्ट है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो दीज आर द वेरियस नोड्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट. ठीक है, तो ये नोड जहां जहां पे भी ग्राउंड को एक्चुअली टच करेगा वहां पे क्या होगा, एक नया प्लांट. नया प्लांट मतलब ऐसा एक प्लांट अराइज करेगा. सपोज यहाँ पे ग्राउंड को टच किया, सो दिस इज हाउ अनदर प्लांट अराइज. यहाँ पे फिर से एक बार टच किया तो यहाँ पे एक और चीज अराइज किया. तो एक्चुअल में ऐसा क्या अज्यूम होता है कि इट सीम्स लाइक कि जो ग्रास है इट इज एक्चुअली रनिंग. ठीक है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं रनर. रनर क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो ये ऑब्वियसली सभी को पता है जो ग्रास होती है वो बहुत फास्टर रेट पे ग्रो करती है, एज इफ इट्स लाइक रनिंग. इस जगह से इस जगह पे इट्स रनिंग फ्रॉम वन एरिया टू द अनदर, इसीलिए वी कॉल इट एज रनर. ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन में क्यों डाला है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो स्टेम का एक पार्ट है, सो इस स्टेम की एक ब्रांच वो डेवलप हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग पैरेलल टू द ग्राउंड. एंड ऑब्वियसली स्टेम है तो नोड्स और इंटरनोड्स दोनों प्रेजेंट होंगे. तो नोड जहां जहां पे नोड ग्राउंड को टच कर देती है वहां पे वो एक नया प्लांट अराइज कर जाता है. ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रनर. दिस इज हाउ द रनर एक्चुअली अराइजेस. ठीक है, और इनकी ऑब्वियसली अब जो रूट्स होंगी वो रूट्स कैसे होंगी, they will be the adventitious roots, because stem से ये arise कर रहे हैं तो obviously इनके जो roots होंगे they will be the adventitious roots. ठीक है, इसके बाद में एक similar term लेते हैं which is actually the